class 7. Yes, lecture number 8. We are going to discuss about first of all about the good and bad conductors. Okay, the topic is good and bad conductors. Now, one good conductor material which allow heat to flow through them easily are called good conductors of heat. Okay, what are good conductors? Material which allow heat to flow through them easily are called good conductors of heat. For example, solids such as metals like iron, steel are good conductors of heat. Same as bad conductors are those materials which do not allow heat to flow through them easily are called bad conductors of heat, or also known as heat insulator. Okay, what are good conductors? The material which allow Plus, we are discussing about the bad conductors. The bad conductors are the materials which do not allow heat to flow through them are called bad conductors, or also known as heat insulators, or you can say only insulators. Okay, for example, solids such as wood, glass, plastic, styrofoam are bad conductors of heat. Okay, all liquid except mercury, which is a liquid metal, and gases are also a bad conductor of heat. So basically आपके पास कंडक्टर और इंसुलेटर या गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर आप किससे कहते हैं? कंडक्टर वो होती है जिससे आपको हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो आपका है जिस मटेरियल से पास हो जाए वो आपके पास क्या आ जाते हैं? गुड कंडक्टर, या हम उन्हें कंडक्टर भी कहते हैं। बैड कंडक्टर आपके पास क्या आते हैं? मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है, जिनमें से हीट वगैरह पास ना हो। अब जैसे आप इस एग्जांपल लें, आपके पास आयरन रॉड है, ठीक है, अगर आप उसका एक एंड आप फायर के ऊपर रखें तो आपको कुछ देर के बाद दूसरे एंड पे भी वो आयरन जो है आपका वो हीट अप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप लकड़ी को रखते हैं तो लकड़ी आपकी जिस जगह पे हीट के ऊपर होगी सिर्फ वो हिस्सा आपका गर्म होगा, दूसरे जो एंड होगा जो आपके हाथ में होगा वो आपका हीट अप नहीं होगा, ठीक है। कंडक्टर्स आपके पास कौन से मटेरियल से? यूजुअली मेटल्स, ठीक है। आपके पास ये आयरन वगैरह आ गया, स्टील वगैरह आ गया, ये चीज आपके पास कंडक्टर है। और बैड कंडक्टर आपके पास कौन सी है? प्लास्टिक, ग्लास, स्टेरोफोम और तकरीबन सारे लिक्विड्स और गैसेस आपके पास क्या आ जाते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जब आपके पास कुछ चीजें good conductors are silver, copper, aluminium, iron, and mercury. Whereas insulators are air or any gas, or glass, plastic, wood. Here you can see the metal part of the frying pan allows heat to pass through, but its plastic handle does not. It's activity आपके पास, take some hot water in a beaker, take a spoon, a glass rod, and a plastic scale, a wooden scale, and a piece of thick copper wire. Dip one end of each of these in the hot water. Wait for 2 or 3 minutes. Then touch the other end of each article with your fingers. Which one becomes hot and which does not? इसके आपके पास कह रहे हैं कि आपने एक बीकर में जो आपने पानी लिया, ठीक है, उसमें आपने 3 से 4 चीजें रख दी, एक स्टील स्पून, ग्लास रॉड, प्लास्टिक स्केल और वुडन स्केल, आपने 3 चीजें आपने 4 रख दी, ठीक है।
इसको हीटअप किया आपने, तो कहते हैं कुछ देर के बाद आपके पास कौन सा मेटल है जो मटेरियल है जो आपके पास हीटअप होगा, तो कौन सा होगा आपके पास? टोटली स्टील स्पून जो सी आपकी वो इसमें मेटल है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी सेकंड हैंड उसका, इसी वजह से आपको उसका क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। और बाकी जितनी भी चीजें हैं आयरन क्या नाम, ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड और वुडन स्केल, ये सब चीजें आपकी बैड कंडक्टर होने की वजह से दूसरे हैंड इनका कूल ही रहेगा, हीटअप नहीं होगा। नेक्स्ट, why metals are better conductors than non-metals? This is an important question. Why metals are better conductors than non-metals? All solids, metal and non-metals, are made of tiny particles called molecule. Okay, but some solids conduct heat better than others. So there is an experiment. Let us put a metal and a plastic spoon in hot water. Which one is good conductor of heat, metal or plastic? Okay. So there, when both spoons receive heat energy, the particles, atoms or molecules at the hot end of each spoon vibrate fast and bump into the neighboring particles. These particles transfer heat energy to next neighboring particles. Okay. या आपको अगर याद हो तो हमने इसमें इंडक्शन वगैरह में पढ़ा था इसका, कि जब एक एंड पे आप लोग जब हीटअप करते थे मॉलिक्यूल जो होते थे, जब वो एनर्जी गेन करते थे उसके बाद वो तेजी से मूव करते हुए अपनी हीट जो है ट्रांसफर कर देते थे एक से दूसरे अपने नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। इस तरह क्या होता था कि आपको जितना भी मेटल होता था वो सारे के सारा हीटअप हो जाता था, ठीक है। Particles in metals are packed more closely together than non-metals. Metal can transmit heat energy more readily than non-metals like wood, plastic, etc. The presence of free electrons also speed up the transfer of heat in metals. When the metal spoon gets heated, the free electrons gain kinetic energy and move further towards the colder part of the metal spoon. They bump into the atoms in the colder parts and transfer heat energy to them. In metals, heat energy transferred from one place to another both by the vibration of particles as well as by the movement of free electrons. That is why metals are good conductors of heat and heat than non-metals. बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी मेटल आप हीटअप करते थे उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो मेटल्स हैं आपके मेटल्स के अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जबकि आपके पास जो कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका करंट और हीट को फ्लो करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। बेसिक जो आपका डिफरेंस है वो मेटल नॉन मेटल कंडक्टर और इंसुलेटर में वो ये है कि कंडक्टर में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, जबकि आपके पास इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें टाइटली बॉन्ड होते हैं आपके इंसुलेटर में। अब जब कंडक्टर के अंदर वो क्लोजली फ्री होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जब उनको हीटअप होते हैं हीट मिलती है तो हीटअप होके मूव करते हैं काइनेटिक, the free electron gain kinetic energy and move further towards the polar parts of the metal spoon. Okay? Then they bump into the atoms in the colder parts and transfer heat energy to them. Okay?
उसके बाद ये क्या होता था कि एक दूसरे के साथ टकराते थे और उस तरह ये अपनी एनर्जी जो वो एटम जो कि हीट अप हुए होते थे वो अपनी एनर्जी कोल्ड एटम्स को ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, heat energy is transferred from one place to another both by vibrations of particles as well as by the movement of free electron. Now conduction in liquid and gases. The process of conduction in liquid and gases is very slow as compared to solids. Okay? The process of conduction in liquid and gases is very slow as compared to solid. The particles in liquids and gases are not held closely together. The particles have less chances to bump into other particles in liquids and even lesser in gases. That is why the transfer of heat energy from fast moving particles to neighboring particles is slow. Water and air are back conductors of heat. ठीक है, बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपने पहले भी पढ़ा था, सॉलिड में आपके पार्टिकल्स जो है वो टोटली पैक्ड हैं, लिक्विड में उनमें कुछ हद तक डिफरेंस आता है और गैसेस के बहुत ही पार्टिकल्स में दो पार्टिकल्स के दरमियान में बहुत ज्यादा गैप होता है। ठीक है, अब द पार्टिकल्स इन द लिक्विड्स gases are not the particles have less chances to bump into other particles in liquid and even lesser in gases. That is why the transfer of heat energy from fast moving particles to neighboring particles is slow. ठीक है, अब इनमें जो डिफरेंस बहुत ज्यादा डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये आपस में टकरा नहीं सकते और अपनी एनर्जी एक पार्टिकल या दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं कर सकता। यही वजह है आपकी कि जो आप कंडक्शन है लिक्विड और गैसेस में एज कंपेयर टू सॉलिड्स बहुत स्लो होती है। So here is activity 8.3. Water and most other liquids except mercury are bad conductor. To show this, wrap an ice cube in wire gauge and drop it in a test tube almost filled with water. It will settle down. Hold the test tube and heat it near the neck with the Bunsen flame, spirit lamp. Now you observe that soon the water in the upper part of the test tube will start to boil, but the ice at the bottom melts very slowly. It shows that water is a bad conductor of heat. Okay? ये एक्सपेरिमेंट आपका शो कर रहा है कि वाटर जो है आपका वो बैड कंडक्टर है हीट। Now everyday applications of conductions of heat. Conduction plays an important role in our life. Number one, cooking utensils, electric kettle, iron, soldering iron are made of metals to conduct heat quickly. Their handles are made of plastic or wood, which are bad conductors. ठीक है, आपके जो बर्तन है कुकिंग करने के जो आपको यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक केटल होगी, आयरन आपके पास इस्त्री होगी, सोल्डरिंग आयरन होगी, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, मेटल्स के होते हैं जो कि आपका कंडक्ट करता है हीट क्विकली। और जब इनके हैंडल्स जो उनसे आप होते हैं वो प्लास्टिक और वुड के होते हैं, जिसकी वजह से आप इजीली उनको पकड़ सकते हैं, वरना आप अगर ये मेटल्स के होते हैं ये भी हीट अप हो जाते हैं और हम उनको छू भी नहीं सकते। Number two, birds have feathers which keep their bodies warm because feathers are bad conductors of heat. बर्ड्स के जो उनके पर वगैरह होते हैं वो क्या होता है, उनकी वजह से उनकी बॉडीज वगैरह को वो वार्म रखती है, गर्म रखती है, बिकॉज फीदर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बेसिकली होता है कि कोई भी अगर चीज मूविंग, हमने पहले भी पढ़ा था, कोई भी मूविंग चीज है उसके अंदर उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली रेज अप होता जाएगा। अब हमारे जिस्म के अंदर खून के चलने की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है,
हाई होता रहता है। अब इसी तरह बर्ड्स के अंदर जब वो टेम्परेचर उनका उड़ने की वजह से या मूवमेंट की वजह से जब उनका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, अब उनके जो फीदर्स वगैरह होते हैं वो उनकी बॉडी की जो हीट है उसको अलाउ नहीं करते कि वो उसमें से पास होके तो एटमॉस्फेयर में जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, उनकी फीदर्स क्या करते हैं, उनके लिए एज अ बैक कंडक्टर ऑफ फीड बनने की वजह से वो उनके बर्ड्स को जो है बॉडीज को वार्म रखते हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज woolen cloths and blankets slow down the transfer of heat. It so happens because the wool traps air in it. The air is a bad conductor of heat. अभी आप लोग मोस्टली सर्दियों वगैरह में हम लोग जब ये ब्लैंकेट्स वगैरह या वुलन क्लॉथ या स्वेटर्स वगैरह या कोट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, इसमें बेसिकली आपका यही होता है जो आपके जिस्म की जो हीट होती है वो इनसे अब आपके जो ये मटेरियल्स हैं, वुडन क्लॉथ्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, इनसे आउटसाइड में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो आप ब्लैंकेट्स वगैरह आपको वार्म अप रख सकते हैं। Model number 4, ice is covered with jute trucks to reduce its melting speed. Jute is a bad conductor of heat. Number 5, an insulating material, styrofoam, is filled between the double wall of the refrigerator. It reduces the transfer of heat across the wall of the refrigerator. ये आपने फ्रिज वगैरह में देखा होगा कि फोम वगैरह होती है, ठीक है। वो फोम बेसिकली आपकी क्या करती है कि वो आपकी जो कूलिंग होती है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर इनसाइड जो होती है वो अलाउ नहीं करती उसको कि वो स्टेरोफॉर्म से गुजर के आपके एटमॉस्फेयर में जा सके। इसी तरह एटमॉस्फेयर की जो आपकी जो हीट होती है वो, अब ये स्टेरोफॉर्म क्योंकि एक इंसुलेटर है आपका, ये अलाउ नहीं करता हीट को कि इनसाइड या रेफ्रिजरेटर में जाके चीज़ों को वार्म अप कर सके। इस वजह से आपकी चीज़ें जितनी भी हैं ये कूल रहती हैं फ्रिज के अंदर। इसी तरह डबल पैन विंडोज आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स to slow the transfer of heat. Air between the two layers of glass act as insulator. इस तरह आपने देखा होगा आजकल अक्सर दुकानों में और घरों में आपने देखा होगा ये सीलिंग वगैरह की जाती है प्लास्टिक, आपके जो रूफ है इससे कुछ डिस्टेंस पे रख के एक प्लास्टिक मटेरियल आपका जो है छतों वाली साइड पे लगाया जाता है, जिसका काम क्या होता है कि आपकी जितनी भी हीट होती है वो आपके कमरे के अंदर दाखिल ना हो सके रूफ के जरिए, ठीक है। अब जिन घरों में ये नहीं होते, ये जो अपर साइड आप जिनका घर के ऊपर छत के ऊपर आके और कोई फर्दर चीज ना बन हो, वो आप लोग देख सकते हैं कि वहां पर जब डायरेक्ट हीट बढ़ती है तो वो आपके कमरे वगैरह गर्म हो जाए। वहां पर ये आपका यूज किया जाता है डबल पैन विंडोज, जिसकी वजह से आपको क्या कहता है कि हीट जो उनसी आपकी सन रेज की जो हीट आ रही है वो आपके रूम्स के अंदर इंटर ना हो सके, और आपके रूम्स की जो कूलिंग है वो आपकी उसकी वजह से आपके रूम से बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से रूम आपका क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। थर्मल bottles use air or vacuum to slow the transfer of heat. Here you can see that buds and feathers, which are bad conductors of heat, whereas polyester is a poor conductor of heat. It keeps our body warm during winter. So class, that is our last topic of today's lecture. Now, if you have any kind of question, you can ask.